a bond with face value of rupees 1000. Face value is what beta? 1000 rupees. Face value of the bond is what beta? 1000 rupees. Yields 6% returns. What yield? 6% returns आपको दे रहा है bond with maturity. See, 6% returns and with maturity value. What maturity value is? What? 4 years. Maturity value what beta? 4 years. Currently the market price of the bond, currently market price जो है bond का, market price of the bond is rupees 840. अभी जो market price है bond का वो कितना है बेटा? 840 है. Okay, currently market price of the bond is rupees 840. Now you have to calculate the yield to maturity. What you have to calculate? What beta? Yield to maturity investment. Okay, yield to maturity investment in the bond. Yield to maturity investment. तो yield, ये अभी नॉर्मल सी बात है, yield to maturity निकालना है तो नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला है वो यूज करो और निकाल लो. बेसिक इंफॉर्मेशन सब दिया है, फेस वैल्यू, फिर 6% रिटर्न्स है आपके पास, कूपन रेट, फिर आपके पास मैच्योरिटी पीरियड है 4 इयर्स. ओके, मार्केट प्राइस जो करेंटली द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 840, परचेज प्राइस भी दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, एवरीथिंग इज गिवन. तो लास्ट लेक्चर में बताया कैसे फॉर्मूला यूज करना है, यूज करो और निकाल लो. तो चलो लेट्स सॉल्व इट. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. नाउ bond with face value 1000. See, redeemable value is not given. If redeemable value is not given, then your face value is considered what? Redeemable value, normal. Okay, so first data is what? Redeemable value. So first data is what beta? Your redeemable value, or you can what say that face value. So face value is what beta? 1000 rupees. Okay, so if redeemable value is not given, remember it, if redeemable value is not given, so face value is considered as what? Redeemable value. redeemable value क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फेस वैल्यू को ही रिडीमेबल वैल्यू लेने का. बच्चा याद रखो, क्या फेस वैल्यू को ही रिडीमेबल वैल्यू लेने का. बाबा समझा? समझा गया? वही चीज है यार, क्या बोलेगा. चलो आगे. फिर रिडीमेबल वैल्यू के बाद क्या? परचेज प्राइस, राइट, या जो भी है आपका निकाल लो. कूपन रेट, इंटरेस्ट निकालना है, जो निकालना है, जो भी गिवन है वो लिख लो. चलो परचेज प्राइस लिख लेते पहले. परचेज प्राइस इज व्हाट बेटा? इट्स योर करंट मार्केट प्राइस. सो करंट मार्केट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 840. बराबर है? वेल डन धीरज, वेल डन यश, वेरी गुड सुनीता. यस करेक्ट है बेटा. सो रुपीज 840 and then n number of years to maturity is what beta? 4 years. Interest amount, now interest amount we want what beta? Interest. You have to present like that, huh beta? Presentation also matters. So interest amount कैसे निकालोगे आप? नॉर्मल सी बात है ना, फेस वैल्यू. इंटरेस्ट तो हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट डिविडेंड हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू के ऊपर. So interest amount is equal to face value multiplied by what beta? Coupon rate of interest. ठीक है, interest amount is equal to what? Is equal to face value multiplied by coupon rate of interest. चलो, face value you know that 1000 multiplied by coupon rate of interest is what beta? 6%. So amount is what? 60. That's it. This is your interest amount. Okay, चलो अब बेटा सब डेटा अपने पास अवेलेबल हो गया है. अब अपने को फाइंड आउट करना है YTM. तो चलो लेट्स फाइंड आउट YTM. YTM is equal to formula, everyone remember it. What is the formula?
RV minus PP. PP means current market price divided by what? Yes, N. ठीक है, then plus I divided by सेम, बस इधर नीचे प्लस हो जाएगा, RV प्लस PP देना है अपने को एवरेज, RV प्लस PP डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर? ये सब, ये RV मतलब ये रेडिमेबल वैल्यू दैट इज RV, परचेज प्राइस दैट इज PP, राइट? परचेज प्राइस दैट इज PP। ओके, N तो नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी हो ही गया, और ये इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज I, दैट्स इट। चलो, अब ये फॉर्मूला याद रखो, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट द आंसर, आंसर मैन, आंसर। चलो फाइंड आउट कर लो। सो आरवी आपको है 1000 माइनस पीपी है बेटा कितना, पीपी 840 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी कितना है 4 इयर्स, प्लस आई इंटरेस्ट अमाउंट है बेटा 60 डिवाइडेड बाय RV plus PP divided by 2, that is RV, that is 1000 plus 840 divided by 2. Okay, चलो, so 1000 minus 840 divided by 4, तो पहले तो 1000 minus 840 आपका 160, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, 160 divided by 4 plus 60 divided by 1000 plus 840 divided by 2, that is पहले तो ये 1840, देखो कैलकुलेशन के लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। चलो नेक्स्ट, अभी क्या करना है, 160 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 40, 40 प्लस कितना था आपका 60 डिवाइडेड बाय 1840 डिवाइड बाय 2 किया, 1840 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 920, सो 100 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 प्लस 60, 100 डिवाइड बाय 920, so what will be your answer, 100 divided by 920 कितना आ रहा है, okay 0.10868, अच्छा तो 87, 0.1087, चलो 4 डिजिट तक लिया है मैंने। ओके, अब बेटा इसको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, बराबर है, परसेंटेज कितना परसेंट होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट क्या होगा। ठीक है, तो चलो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, मल्टीप्लाइड बाय, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, राइट, बराबर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो तो कितना परसेंट आ गया आपको, 10.87%, यस, सो दिस इज व्हाट योर YTM, ये आपका हो गया YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी आ गया, गॉट इट, क्लियर है, दिस इज व्हाट योर YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, याद रखो, ठीक है, क्लियर है बेटा, लॉक कर दो, तो ये माइंड में सब लोग रखना। हाँ, और मैंने क्या बोला, ये 100 आप फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हो, इधर से भी मल्टीप्लाइड बाय 100 स्टार्टिंग से ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है, समझा, याद रखो, नहीं लिया तो फिर भी चलेगा, लास्ट में परसेंटेज निकलना है तो इंटू 100 कर दो, दैट्स इट, जिसको लेना है तो इधर मल्टीप्लाइड बाय ऐसे फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं 100, नो नीड टू वरी, ठीक है, और आपका जो ये आंसर आएगा वो भी इनफ है 0.1087, अगर परसेंट में कन्वर्ट करेगा तो 10.87 हो जाता है, दैट्स इट, ओके, सो ये हो गया अपना सम। फिर नेक्स्ट वाला आ जाओ,
सो क्वेश्चन नंबर 3 भी मई 2019 में आ चुका है. सो अ बॉन्ड ऑफ ₹1000, बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है 1000, हैज अ कूपन रेट ऑफ 8% पर एनम. कूपन रेट क्या है बेटा 8% पर एनम. ओके. एंड मेच्योरिटी पीरियड इज 3 years. मेच्योरिटी है 3 years की. ओके. द बॉन्ड इज करेंटली सेलिंग एट ₹910. बॉन्ड करेंटली सेल हो रहा है 910 पे. ओके. सो व्हाट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी. क्या होगा आईटीएम, क्या होगा यील्ड टू मैच्योरिटी, क्या होगा इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस बॉन्ड, वही अपने को निकालना. तो सब डेटा है अभी निकाला, तो लेट्स डू इट. चलो कर लो फटाफट. सॉल्यूशन वही सब बेटा. पहले बेसिक इंफॉर्मेशन put the basic information, that is redeemable value, which is RV. बराबर है. RV कितना है, और मैंने क्या बोला इधर रिडीमेबल वैल्यू ही आपका क्या है फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू ही आपका रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा. अगर रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है, रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया है, तो फेस वैल्यू ही रिडीमेबल वैल्यू हो जाएगा. पता है ना. बस. तो इसमें देखो रिडम्पशन वैल्यू ऐसा करके कुछ दिया नहीं है, तो जो फेस वैल्यू होगा वही रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगा. दैट्स इट. 2000. राइट. So face value or redemption value, redeemable value is what 1000. Yes, very good Yash. Well done. Correct है बेटा आंसर. चलो देन redeemable value के बाद परचेज प्राइस और करंट मार्केट प्राइस. परचेज प्राइस जिसको आप बोलते हो पीपी और करंट मार्केट प्राइस. तो परचेज प्राइस और करंट मार्केट प्राइस इज गिवन, दैट इज 910. ओके. 910. N is what numbers of years to maturity is what 3 years. Then interest amount. That is I. क्या फॉर्मूला हो जाएगा पता है ना, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई इज इक्वल टू व्हाट फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलो तो फेस वैल्यू क्या हो गया बेटा अपना 1000 इनटू कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%. सो आंसर इज व्हाट इंटरेस्ट अमाउंट इज 80. ओके. चलो वाईटीएम निकाल लो. राइट. फॉर्मूला है उसको यूज करो और वाईटीएम निकालो. यस वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड आदित्य. करेक्ट आंसर बेटा. यस सुनीता वेरी गुड. परफेक्ट आंसर. चलो तो वाईटीएम सेम फॉर्मूला वही आरवी माइनस पीपी डिवाइडेड बाय एन प्लस आई इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय व्हाट आरवी प्लस पीपी का एवरेज. दैट्स इट. और जिसको मल्टीप्लाई बाय इधर 100 करना है तो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं. बराबर है. चलो नाउ यूज इट. आरवी है आपका बेटा 1000 माइनस पीपी इज व्हाट 910 divided by n is what 3 years to maturity plus I 80
divided by RV plus PP. RV 1000 plus PP 910. Take an average of this, that is divided by 2. Then simple funda, 1000 minus 910, which is 90 divided by 3 plus 80. Okay, plus what beta? 80 divided by what? Divided by 1000 plus 910, 1910. Divided by 2. Okay, चलो next. सब हो गया, डायरेक्टली अभी आ जाओ नेक्स्ट. Then what? 90 divided by 3, that is 30 plus 80 divided by 1910 divided by 2, that is 955. 955. So 30 plus 80, that is 110 divided by 955. So आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 0.1152. ओके, हो गया. दैट्स इट, दैट्स योर आंसर. यही हो गया आपका यील्ड टू मैच्योरिटी. परसेंटेज देखना है तो इंटू 100 कर दो. क्या परसेंटेज होगा? मल्टीप्लाइड बाय 100. परसेंटेज मतलब क्या? 100 ना, 100 ना. परसेंटेज इज व्हाट? 100. सो मल्टीप्लाइड बाय 100. तो क्या रेट आ गया? 11.52%. Yes. So the rate is what? 11.52%. This is what your YTM. Yield to maturity. Yield to maturity. That's it. So ऐसे ही फॉर्मूला यूज करो और अपना yield to maturity कैलकुलेट करो. That's it.